वेलकम बैक टू द डे 3 गाइज। आज अपन निकलने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ। फर्स्टली वी विल पोस्ट द पोस्ट कार्ड्स विच वी हैव एंड देन वी विल बी गोइंग टू रावना वाटरफॉल एंड नाइनार ब्रिज, Sita Amam Temple and Ashok Vatika. Few of the relics of Ramayana we are going to visit and we are damn excited. So finally we are here at Nuwara Elia Post Office, Colonial Post Office, जो कि one of the oldest post office है in existence, and I am sending 3 postals. Hopefully it gets to the people who have wrote before. चलो, रात में दिखा नहीं होगा आपको। ये पूरा कॉलोनियल पोस्ट ऑफिस है। One of the postcard had this particular photo on it as well. Bureau counter, Nuwara Elia. That's the post office over here. Location देखो आप। Lots of tourist places. This is a tourist place attraction basically. चलो फोटो निकाल के Instagram पे मिल जाएगा आपको। This is the race course basically. और शुभम बोल रहा है कि इधर पोलो का प्रैक्टिस भी होता है। क्वाइट गुड। इधर स्ट्रॉबेरी एक एग्रो वाला फार्म है, वहाँ देखने आए थे, बट क्वाइट अ हाई रेट टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा महंगे हैं। नहीं, इंडिया में बहुत सस्ते मिल जाते हैं। पुणे से जो महाबलेश्वर वगैरह सब पास में है, तो रेट भी अच्छा मिल जाता है। पहचान के रहे तो फ्री में भी मिल देते। अभी इधर पूरा फार्म है इनका, शायद से उधर जा रहे हैं हम। तो वी आर हियर एट सीता अम्मम टेम्पल। अंदर का सीता माँ का टेम्पल मैं दिखा नहीं सकता, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट दिस इज़ ओवर हियर द होली रिवर ऑफ सीता माँ एंड अपेरेंटली द फुट प्रिंट इज ऑफ लॉर्ड हनुमान। सो अपन अभी आए हैं अशोक वाटिका, जहाँ पे सीता माँ को सीता माता को हरण करके यहाँ पे रखा गया था रावण के द्वारा। जब हनुमान जी पहले उनसे मिलने आए थे तो यहाँ पे फुट रखा था। ये पूरा अशोक वाटिका का ही एरिया है और ये पीछे मेरे सीता अम्मा का मंदिर है। एंड दिस रिवर ओवर हियर इज कॉल्ड होली सीता अम्मा रिवर एज पर श्रीलंकन मैप्स। दिस इज़ द फुट प्रिंट और यहाँ पर हनुमान जी ने पहला पैर रखा था। Quite interesting place regarding to Ramayana. थोड़ा कचरा है, but it's adjustable. एक और रामायण का चैप्टर अनवेल हुआ है। वी आर हियर एट वेयर सीता माता's अग्नि परीक्षा हैपेंड। दिस इज़ द टेम्पल सीता देवी अग्नि प्रवेशा एंशिएंट टेम्पल। हम अभी आए हैं सीता अम्मा टेम्पल, जहाँ पे माता सीता ने अग्नि परीक्षा को फेस किया था, मतलब अग्नि प्रवेश किया था अग्नि के इधर, और सभी को उनकी प्योरिटी का सबूत दिया था। So over here actually is a Buddhist temple, big Buddhist temple. Beside that there is one stupa where that penance took place. If you see these two people trees, there is between one stupa. There actually that penance happened, Agni Pariksha. And it is said that 7 cobras live in its surrounding stupa, that particular small one. This was constructed by Buddhist people when the English colonial rule was happening, when all the Portuguese and every other people were coming to dig about the gold and everything. Basically, when the Agni Pariksha happened, all the gold, all the flames were turned into golden flames and eventually the gold. Lots of gold were stored here. So the Portuguese and every other people tried to dig it out, but Buddhist people dug the 40 feet deep cave and put it there. So after that they made that stupa. If you see, on the top of that pura there is a serpent like scenario. They say whenever this particular stupa has that serpent, it is very, very special. And over here is the Sita Amma temple which we visited.
this whole scenario is based on woman power. So everywhere, if you go into the temple, if you go inside the stupa, even while visiting it, women's are first priority. After that, men's are given permission. Here are the two people leaves tree. Leaves of this particular trees are very, very small compared to what we find in India, and they are almost 1700 to 1100 years old. And over here is the Ashoka tree. If you see, leaves are very small and flowers are also there. But in our India, there is nothing sort of that. And this is actually spinach. They say it is spinach. And tulsi. Main चीज़ तो दिखानी रहेगी आपको. Actually, we are just before where the final battleground was there. Here only Ram Ravan battle had happened, and that mountain range, there is one Stripuram where Sita waterfall and that black forest is there, where actually Sita Mata used to live when she was kidnapped by Ravan. And all the soil is black. Nuwara Elia. Nuwara means city and Elia means light. So city of light. The name comes from when Lord Hanumana burned that particular city, it was shining like a bright star. They say so the name was given Nuwara Elia. That is particularly Lanka, which Hanumanji burnt. Welcome to Ela. हम निकल रहे हैं अभी नाइनार्क ब्रिज की तरफ. इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम टुक इट्स ओनली 1000 श्रीलंकन रुपीज़, बट हम 4 जन हैं तो हमको 2 लगने वाले थे. इंस्टेड ऑफ दैट वी ऑप्टेड फॉर ट्रैक, मीन्स नॉट ट्रैक एग्जैक्टली, वॉकिंग. ये पूरा सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड है. नॉट श्योर ये लास्ट तक रहेगा कि नहीं तो ये ऐसे टुक है. यू विल गेट 1000 रुपीज़ टुक बैक. Quite a foreigners here as well. पूरे श्रीलंका का टूरिज्म फॉरेनर्स पे डिपेंड है ऐसे लग रहा है. वो नाइनार्क ब्रिज भाई 1000 रुपये का स्कैम है. स्कैम. ऊपर आते समय ऑटो इज गुड, नीचे आते समय नो गुड. सो दिस इज द ट्रैक विच लीड्स टू नाइनार्क ब्रिज. यहाँ से 600-700 पायरा है, मतलब स्टेयर्स है, उससे नीचे उतरना पड़ता है और वहाँ तक ही टुक या ऑटो आता है. सो इफ़ यू आर कमिंग अवॉइड टुक इट्स जस्ट 5 minutes वॉक फ्रॉम देयर एंड few minutes वॉक हियर. वैसे भी इधर टुक तो आने नहीं वाला. सो वी हैव रीच्ड हियर एट नाइनार्क ब्रिज. जस्ट 20 मिनट का वॉक था, ज़्यादा कुछ तो था नहीं. उसमें भी 100,000 रुपये वो देने वाले थे, एंड दैट टू इन बिटवीन ओनली. अभी अपन खड़े हैं नाइनार्क ब्रिज पे. ये 9 आर्च वाले ब्रिज, मतलब 9 आर्च है ये ब्रिज के नीचे. सो इट्स कॉल्ड 9 आर्च एंड चेक आउट द सीनरी. हाय. और एक ट्रैक है अभी. 9 आर्च का ब्रिज पे जाके अभी एक व्यू पॉइंट मिला है. गुड्डू ने इंस्टाग्राम से ढूंढ के निकाला है कि कौन से अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं. सो वी गॉट वन प्लेस. अभी उधर ही जा रहे हैं. थोड़ा हाइक है बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट. ये व्यू पॉइंट है, ये पूरा इधर का रास्ता था एंड दिस इज़ द 9 आर्च ब्रिज. अभी बस ट्रेन आने का वेट है. एक बार ट्रेन आ गई फ़ोटो मस्त वगैरह खींचते हैं. एंड बॉयज़ आर हियर एज वेल. अभी निकले 9 आर्च ब्रिज से वापस टुक में, और जाते समय सिर्फ 500 रुपये लिए. चारों को बैठा लिया. सर मैया ऐसा बैठा है. मैया प्लीज़ आए. मैया कैपिकेट ये हो भाई. मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना. फाइनली एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया एला में. अभी लंच करने निकले, ऑलमोस्ट 3:30 हुए हैं. वी हैड हैवी ब्रंच, सो अभी थोड़ा लंच करते हैं. देखते हैं वेज में ऑप्शंस क्या है. ओनली इंडियन रेस्टोरेंट वी स्पॉटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रोड.
सो फाइनली एक ट्रू फूड करके रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पे दाल तड़का और राइस अवेलेबल है। अभी दो प्लेट ऑर्डर किए और एक गोभी मंचूरियन भी है। देखते हैं इधर का टेस्ट कैसा है और आपको देते हैं अपडेट मस्त वाला। अभी तक का सबसे महंगा खाना हमको एला में मिला। हमने लंच ही कर लिया, 4 राइस, 2 दाल फ्राई एंड 1 गोभी मंचूरियन। इधर के ऑलमोस्ट 6,000 रुपये, मतलब इंडिया के 1800 समथिंग में। इंडिया में यही खाना हमको 600 रुपये में मिल जाता था। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? श्रीलंका का सबसे बिजीएस्ट स्पॉट एंड मोर देन श्रीलंकन्स हियर आर फॉरेनर्स। ये स्क्वायर में चेक करो। आई विल कीप फ्रेम स्टिल फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स एंड ऑल यू कैन सी इज फॉरेनर्स, 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 everywhere foreigners. I have not seen such a scene in India as well. Finally we have reached our hotel, Ravana Face Hotel. So that is over there is the Ravana cave. This is the whole view what we get from the balcony over here. This is the reception area. Room is being prepared. Quite a few foreigners here enjoying. It's good to go. That's the waterfall, Ravana waterfall. Over there is the cave and check out the view. चलो रूम में चेक इन करते हैं और आपको दिखाते हैं रूम। अभी खाना खा के वापस आया है। वही खाना था, मोस्टली फ्राइड राइस, नूडल्स एंड चिकन राइस, ये दोनों के लिए। वो क्या ही दिखाना, रोज का वही एक खाना। जस्ट व्यू वॉज ब्यूटीफुल एंड इट वॉज रेनिंग। बाहर तो पूरा डार्क हो गया था। सो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू वॉट एवर यू वांट। लव यू।